Okay, good evening, everybody. But I hope you are able to hear my voice. Okay, Devadatan, I got your question, but we'll be solving this at the end of the session. Okay, so we are first initially going to begin up with transportation in plants. Transportation in plants हम begin करने जा रहे हैं. All right. उसके बाद फिर हम discuss करेंगे further. We are going to discuss the transportation of water and then transportation of food, that is sugar in plants. Abhache, when you talk about transportation in plants, plants potentially have to transport water and minerals. Just a minute. Okay. Plants have to transport water and minerals which are absorbed from soil. All right. Water and minerals which are absorbed from the soil. They're absorbed through roots. Okay. This transportation occurs through xylem. ये ट्रांसपोर्टेशन बच्चे किसके थ्रू होती है? ये xylem के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है. All right. Secondly, plant has to transport food, and this transportation occurs through phloem. ये ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होगी? ये phloem के थ्रू होगी. All right. अब बच्चे, when you talk about transportation of water and minerals or food through phloem, there are certain mechanisms involved. They are although not as complex, वो इतने complex नहीं है जितने हम animals के अंदर देखते हैं, but there are still forces involved and various tissues involved which are helping in their transport. तो सबसे पहले बच्चे हम discuss करेंगे transportation of water and minerals. And बच्चे, this process is known as ascent of sap. Ascent of sap. What do we mean by ascent of sap? Ascent of sap means transportation of water and minerals. Transportation of water and minerals. Transportation of water and minerals from the soil. Transportation of water and minerals absorbed from the soil. All right. अब बच्चे यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. हमें ये याद रखना है कि ascent of sap का क्या मतलब है. Ascent of sap means transportation of water and minerals which is absorbed from the soil. Soil में से water and minerals को कौन absorb करता है? Root hairs. And बच्चे, which tissues help in upward movement? This transportation occurs through xylem. This process occurs through xylem. This process occurs through xylem. And बच्चे, what is the direction? ये प्रोसेस किसके थ्रू होता है? xylem के थ्रू होगा. All right. And अगर आप डायरेक्शन देखोगे वाटर एंड मिनरल्स की, it is always upwards. It is unidirectional. This transport is unidirectional. It has unidirectional transport. Okay. It has unidirectional transport. That is always upwards. Okay. कभी भी water and minerals नीचे नहीं आते हैं. अब अच्छा, when these water and minerals are absorbed by root hairs, water and minerals have to travel against the gravity. Gravity के against travel करना है. अब अच्छा, if you look at plants, roots के अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर कभी भी आपको कोई मोटर या पंप जैसी चीज तो दिखाई नहीं देगी. तो बच्चे, how is water and minerals being transported upwards? It is through process of transpiration. Okay, that is absolutely right. Devadatan, that is absolutely right.
जो बच्चे हम देख रहे हैं यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, अपवर्ड ट्रांसपोर्ट, जो फोर्स जनरेट हो रही है, ओके, इट इज अकरिंग विद हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल. द अपवर्ड फोर्स, the upward force or suction pull is generated by, किस प्रोसेस से जनरेट होती है? इट इज जनरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ transpiration. Okay, transpiration is बचे loss of water vapor from aerial parts of the plant, that is stomata or lenticels. इनसे जो सक्शन पुल जनरेट होगी, फोर्स जनरेट होगी, दिस विल लीड टू अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर. दिस माइट सीम समटाइम्स, ये आपको लग सकता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ट्रांसपिरेशन से इतनी फोर्स जनरेट हो रही है. तो बच्चे इसके पीछे कुछ रीजंस हैं. ओके, आई विल जस्ट शो यू अ वेरी सिंपल डायग्राम. ओके, दिस इज द डायग्राम, how it is occurring actually. But this is actually a schematic flow of water traveling through different parts of the plant as it moves upwards. So bache, when you talk about movement of water, if you see carefully, water is absorbed by root hairs from the soil, and then this water will travel through different parts of the root and reach the xylem. Okay, now bache, what we have to remember, these xylem vessels, their diameter is very small. xylem vessels का जो diameter होता है वो बहुत small होता है. और किस तरीके से होता है? You will only see presence of water molecules in the form of beads, like this, like a single chain. So what is going to happen when transpiration occurs? तो एक जो water molecule है वो evaporate होके बाहर गया. Once this evaporation occurs, जब ये evaporation होगी तो क्या होगा? What is going to happen? As the water molecule evaporates, there will be a vacuum. यहां क्या create होगा? Partial vacuum. This is going to lead to partial vacuum. And as a result, what happens? A suction pull will be generated, which will pull this chain of water molecules upwards. Okay? This will pull the chain of water molecules upwards. तो सारी जो फोर्स जनरेट हो रही है बच्चे, किसके थ्रू जनरेट हो रही है? किसके थ्रू जनरेट हो रही है? इट इज ड्यू टू ट्रांसपिरेशन फ्रॉम लीफ. ओके, आई विल जस्ट रिपीट द प्रोसेस वंस अगेन. बच्चे, वाटर जो है रूट हेयर्स ने एब्सॉर्ब कर लिया सॉइल से. दिस वाटर विल देन पास थ्रू रूट हेयर्स इनटू वेरियस लेयर्स ऑफ रूट्स and stem, and ultimately it will reach the xylem vessels. वाटर बहुत सारे लेयर से पास होके xylem vessels के अंदर आ गया. अब बच्चे, inside the xylem vessels you will just see a chain of water molecules. बच्चे, cortex and endodermis, cortex और endodermis layers हैं stem के अंदर जो हमें दिखाई देंगी. Cortex and endodermis, they are layers which you find in stem. Okay, इन लेयर्स को क्रॉस करके वाटर किधर पहुंचता है? जाइलम के अंदर. अब बच्चे, हाउ कैन वाटर ट्रेवल इन दी जाइलम? इट कैन जस्ट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ अ चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जाइलम वेसल्स का डायमीटर क्या होता है? इट इज वेरी स्मॉल. नाउ दिस चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, दे आर क्लिंगिंग टू ईच अदर, एंड हाउ दे आर पुल्ड अपवर्ड्स? बच्चे, जब ट्रांसपिरेशन होती है तो इस तरीके से होगी कि सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल एक टाइम में इवेपोरेट होके बाहर जा सकता है. सो बच्चे, वंस दिस वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, इट विल क्रिएट अ स्पेस इन द स्टोमेटा कैविटी. और उसकी वजह से क्या क्रिएट होगा? इट विल क्रिएट अ पार्शियल वैक्यूम, एंड दिस पार्शियल वैक्यूम विल जनरेट सक्शन पुल. This partial vacuum will generate suction pull. As a result, what is going to happen? This chain of water molecules are pulled upwards. Okay, so this is how water molecules are transported upwards in plants through xylem. Is this clear, everybody? Is this clear?
ऑल राइट, ओके। तो बच्चे यहां हमें ध्यान से क्या देखना है, यहां जो फिजिकल फोर्स जनरेट हो रही है वो ट्रांसपिरेशन की वजह से जनरेट हो रही है, एंड दिस इज द रीजन इट इज ऑल्सो नोन एज अ पैसिव प्रोसेस। इसको बच्चे हम क्या कहते हैं, पैसिव प्रोसेस। वाई पैसिव, क्योंकि बस के बच्चे इसके अंदर कोई एटीपी वाली एनर्जी यूज नहीं हो रही, नो केमिकल एनर्जी इज यूज्ड, इसमें फिजिकल फोर्सेस ही यूज हो रही हैं, सो इट इज अ पैसिव प्रोसेस। ऑलराइट, चलो लेट्स राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस। The upward force of suction pull is generated by process of transpiration. All right, तो बच्चे ये पानी कैसे ऊपर जाएगा, when root hairs absorb water, when root hairs absorb water, when root hairs absorb water, it travels towards xylem vessels and tracheids. Okay, it will travel towards xylem vessels and tracheids. अब अच्छा, what is the diameter of xylem vessels and tracheids? Their diameter is very small. The diameter is small, and the water molecules travel in them, yeah, water molecules in them form a chain. एक चेन की तरह बचे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उनके अंदर फॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, व्हेन ट्रांसपिरेशन, बच्चे जब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा स्टोमेटा के थ्रू, बच्चे कैन यू टेल मी हाउ मेनी स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन लीव्स, वन और मेनी? लीव्स में कितने स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, एक की बहुत सारे, न्यूमरस, बहुत सारे। तो हर एक लीफ के स्टोमेटा के थ्रू क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगी। व्हेन ट्रांसपिरेशन अकर्स फ्रॉम स्टोमेटा, बच्चे जब ट्रांसपिरेशन होगी स्टोमेटा के अंदर से, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्टोमेटा की जो कैविटी है उसके अंदर स्पेस क्रिएट होगी, क्योंकि बच्चे ये जो चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये स्टोमेटा तक एक्सटेंड करते हैं, और एक टाइम में एक ही मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो सकता है। इस तरीके से स्पेस होती है, इतनी छोटी स्पेस है, एक टाइम में एक ही वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होगा स्टोमेटा के थ्रू। तो बच्चे जब वो वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होगा उस पे क्या क्रिएट होगा, उस स्टोमेटा की स्पेस में क्या क्रिएट होगा, पार्शियल वैक्यूम, क्योंकि जगह खाली हो गई, इट विल क्रिएट अ पार्शियल वैक्यूम। और इस पार्शियल वैक्यूम की वजह से क्या होगा, सक्शन पुल क्रिएट होगी, क्योंकि जो अगला वाटर मॉलिक्यूल है वो उसकी स्पेस लेने के लिए आगे पुल होगा। दिस इज लाइक अ चेन। एज अ रिजल्ट वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं ऊपर की साइड पुल होंगे। ऑलराइट, दिस क्रिएट्स a suction pull due to, या आप लिख लो, this creates a suction pull which results in pulling up of water molecules. बच्चे इट इज लाइक अ चेन, जैसे अगर हमारे पास एक चेन है
आप एक लिंक को, चेन की एक लिंक को ऊपर खींचो, what happens? The next link will come up. This is how a chain is pulled. जैसे अगर आपके पास एक बीड्स की माला है, let's say you have a necklace made up of beads. अगर आप इस बीड को ऊपर पुल करोगे, नेक्स्ट बीड उसकी जगह पे आ जाएगा, इस बीड को पुल करोगे, थर्ड आ जाएगा, एंड सो ऑन. तो वाटर मॉलिक्यूल्स भी बचे ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं. वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये इवेपोरेट हुआ, इसकी जगह लेने के लिए दूसरा ऊपर आएगा, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं. तो बच्चे वी नीड टू रिमेंबर कि ट्रांसपिरेशन जो है, ट्रांसपिरेशन से अबाउट 95% जो वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट्स के अंदर, इट इज लॉस्ट. 95% of water which is absorbed by roots, it is lost by transpiration. पर बच्चे ये प्रोसेस जरूरी है. रीजन, अदरवाइज वाटर और मिनरल्स जो है ऊपर ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे. इसलिए कई बार हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी ईवल. ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी ईवल. क्योंकि अगर बच्चे प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन नहीं होगी, अगर प्लांट में ट्रांसपिरेशन नहीं होगी तो क्या होगा, पानी ऊपर ही नहीं जाएगा. ऑल राइट, ओके. देवादत्तन ने एक टर्म यूज किया है, गटेशन. ऑल राइट बच्चे, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म गटेशन? बच्चे गटेशन इज यूजुअली सीन इन मोनोकॉट प्लांट्स, जैसे ग्रासेस हैं. गटेशन इज लॉस ऑफ वाटर in the form of drops. या आप लिख सकते हो इट इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम मार्जिन ऑफ लीव्स. तो इसमें बच्चे वाटर वेपर नहीं बनेगा, इसमें वाटर वेपर नहीं बनता. ओके, इट इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड थ्रू एरियल पार्ट्स. तो हम देखते हैं कि ये मार्जिन ऑफ लीव्स पे वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होते हैं. बच्चे अगर आप विंटर टाइम में ग्रास के लॉन में जाओ, लॉन में ग्रास पे जाते हैं तो आपने देखा होगा उसके ऊपर वाटर होता है इन द अर्ली मॉर्निंग, जिसको हम कई बार ड्यू ड्रॉप्स भी बोल देते हैं. एक्चुअली वो गटेशन की वजह से क्या होता है बच्चे, उनकी लीव्स के मार्जिन पे पानी आ जाता है, एंड दैट इज ड्यू टू रूट प्रेशर. पर बच्चे गटेशन जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट आपको मोनोकॉट प्लांट्स में ही दिखेगा, क्योंकि उनकी हाइट उतनी ज्यादा नहीं है. दे आर वेरी स्मॉल प्लांट्स. तो उनके रूट्स में जब पानी अंदर आता है तो उससे रूट प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे ये जो वाटर है ऊपर की साइड पुश होता है, एंड दिस रिजल्ट्स इन गटेशन. पर बच्चे जो बड़े प्लांट्स हैं, ट्रीज वगैरह में, गटेशन डज नॉट प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट फोर्स. तो ज्यादा फोर्स किससे जनरेट होगी, अपवर्ड पुल के लिए, दैट इज जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? गटेशन जो है बच्चे आपको मोनोकॉट प्लांट्स में ही देखने को मिलती है, जो छोटे प्लांट्स होते हैं, स्मॉल प्लांट्स. ओके, नाउ व्हाट आर मोनोकॉट प्लांट्स? बच्चे मोनोकॉट प्लांट्स हैं जिनके सीड में एक ही कॉटिलेडन होता है. तो जनरली बच्चे इनके अंदर हर्ब्स आते हैं, जैसे ग्रासेस है. ग्रास इज अ मोनोकॉट प्लांट. ग्रास इज अ मोनोकॉट प्लांट. अब बच्चे ये मोनोकॉट प्लांट क्या है? व्हाट इज मोनोकॉट प्लांट? बच्चे मोनोकॉट प्लांट क्या होता है? जिसके सीड में एक ही कॉटिलेडन है, ओनली वन कॉटिलेडन इन द सीड. व्हाट इज मोनोकॉट प्लांट? ओनली वन कॉटिलेडन इन द सीड. ठीक है. एक और कैटेगरी होती है बच्चे डाइकॉट प्लांट्स. डाइकॉट प्लांट्स में सीड के अंदर दो कॉटिलेडन्स होते हैं. ऑलराइट, ओके. ये बच्चे एक्चुअली जो चैप्टर, ये जो टर्म्स हैं, ये क्लास 9th में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के चैप्टर में टर्म्स यूज हैं. ओके, तो उसके अंदर ये टर्म्स यूज्ड हैं. पर आई थिंक क्योंकि लास्ट ईयर वो सिलेबस में नहीं था तो आपने नहीं पढ़ा होगा. तो मोनोकॉट प्लांट्स जनरली हर्ब्स होते हैं और उनके अंदर गटेशन आपको ज्यादा प्रोमिनेंट दिखती है. तो गटेशन जो है उससे ज्यादा फोर्स जनरेट नहीं होगी. हायर प्लांट्स में गटेशन इज नॉट सिग्निफिकेंट. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? ये पॉइंट सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर? ऑलराइट, ओके. बच्चे व्हाट डू यू थिंक, अगर हम स्टोमेटा को ब्लॉक कर दें,
if you block stomata, which processes will stop in plant? If I block stomata, अगर मैं स्टोमेटा को ब्लॉक कर दूं, लेट्स से बाय अप्लाइंग वैसलीन मैंने अप्लाई किया, ऑलराइट, वैसलीन को मैंने अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद स्टोमेटा को मैंने ब्लॉक कर दिया, तो आपके कौन से प्रोसेसेस जो हैं वो नहीं हो पाएंगे बचे? वन इज ट्रांसपिरेशन ऑब्वियसली, एंड इफ ट्रांसपिरेशन इज स्टॉप्ड, एसेंट ऑफ सैप विल स्टॉप. बचे व्हाट अबाउट फोटोसिंथेसिस? डू यू थिंक फोटोसिंथेसिस हो पाएगी? नो. एक्सचेंज ऑफ गैसेस रुक जाएगा, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा. और बचे उसके बाद रेस्पिरेशन भी रुक जाएगी, रेस्पिरेशन विल आल्सो स्टॉप. तो बचे यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. अगर आप स्टोमेटा को ब्लॉक करोगे तो एसेंट ऑफ सैप रुक जाएगा क्योंकि ट्रांसपिरेशन नहीं हो रही, रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगी, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी. तो क्या बचे? प्लांट सरवाइव करेगा? क्या प्लांट सरवाइव करेगा? नो, इट विल नॉट बी एबल टू सरवाइव. पर बचे यहाँ एक और यूनिक प्रॉब्लम है. इफ यू टॉक अबाउट डेजर्ट प्लांट्स, जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, डेजर्ट प्लांट्स में अगर लगातार ट्रांसपिरेशन होगी, क्योंकि अगर वो कोई और उनमें अडेप्टेशन ना हो तो सन की हीट की वजह से बचे ट्रांसपिरेशन लगातार होगी, क्योंकि बचे ट्रांसपिरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं. ये प्लांट को ठंडा करने में भी हेल्प करता है. तो डेजर्ट में जहां टेम्परेचर बहुत है बचे, प्लांट को ट्रांसपिरेशन को कम करना पड़ेगा क्योंकि पानी ऑलरेडी सॉइल के अंदर कम होता है. तो अगर वो ट्रांसपिरेशन करता जाएगा तो क्या होगा? वाटर विल इवेपोरेट और प्लांट फिर क्या सरवाइव नहीं कर पाएगा. ऑलराइट. तो बच्चे जीरोफिटिक प्लांट्स और डेजर्ट प्लांट्स में कुछ अडेप्टेशन होती है. अगर आप देखोगे उनके लीव्स जो होते हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स एंड देयर स्टोमेटा आर संकन. संकन मतलब वो सरफेस पे नहीं होते, उनके ऊपर हेयर्स की कवरिंग होती है ताकि ट्रांसपिरेशन को कम किया जा सके. और बच्चे फोटोसिंथेसिस में भी हम जीरोफिटिक प्लांट्स में कुछ चेंजेस देखते हैं. जैसे बच्चे डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं ड्यूरिंग डे टाइम when they have to keep their stomata closed, what they do is they will absorb light of sunlight. सन की जो एनर्जी है उसको क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा. then their energy, that energy is used to prepare a temporary product. फोटोसिंथेसिस में डायरेक्टली वो एंटर नहीं करेंगे, वो लाइट को यूज करके एनर्जी को एक टेम्पररी प्रोडक्ट बना के उसकी एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं. ड्यूरिंग डे नाइट टाइम जब टेम्परेचर कम होता है, दे विल ओपन देयर स्टोमेटा, CO2 will enter, then they will take energy from that temporary product और उस CO2 को फिर वो reduce कर लेते हैं. तो this is how xerophytic plants perform photosynthesis. और वो adaptation क्यों है? That is to prevent loss of water. I think ये तो आपने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में आपने पढ़ लिया होगा. हमने जब पहली बार ये चैप्टर डिस्कस किया था तब तो किया था आई थिंक, बट जब हमने इस बार रिवीजन किया तो उसमें ये डिस्कशन नहीं की है. तो डेजर्ट प्लांट्स के अंदर ये क्या होती है? अडेप्टेशन होती है. ड्यूरिंग डे टाइम दे विल कीप देयर स्टोमेटा क्लोज्ड बट दे विल एब्जॉर्ब सन्स एनर्जी. उस एनर्जी से वो टेम्पररी प्रोडक्ट बनाएंगे जिसमें वो एनर्जी स्टोर हो जाएगी. नाइट टाइम दे विल ओपन देयर स्टोमेटा, रात को उनका स्टोमेटा ओपन करेगा, CO2 विल एंटर इनसाइड. उस CO2 जो अंदर आ रहा है रात में उसको वो रिड्यूस करेंगे उस टेम्पररी प्रोडक्ट की एनर्जी से, and then photosynthesis will proceed. Is this clear? Okay. See, देवादत्तन, आपको यहाँ एक चीज ये याद रखनी है, जब आप डेजर्ट प्लांट्स की बात करते हो, जैसे कैक्टस है, दे आर वेरी फ्लैशी, वो अपने अंदर ही वाटर को स्टोर करते हैं. तो वो अपनी सेल्स की जो वाटर की रिक्वायरमेंट है उसको अपने वाटर जो उन्होंने अंदर स्टोर किया है ना उससे पूरी करते हैं. Is this clear? बट वेन यू टॉक अबाउट लार्ज ट्रीज, बजे बड़े बड़े जो पेड़ है उनके अंदर तो ऐसा कोई खास मैकेनिज्म नहीं है वाटर को स्टोर करने का. सो दे विल हैव टू ट्रांसपोर्ट वाटर, उसके लिए वो क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन. पर बच्चे आपने समर मंथ्स में देखा होगा
जो हमारे घर के अंदर प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, अगर आप उन्हें पानी ना दो तो वो गर्मी में क्या होते हैं, दे विल्ट, और बहुत लंबे टाइम तक पानी नहीं दोगे, दे विल डाई। ओके, वो उसका रीजन क्या है, क्योंकि सॉइल में अगर पानी नहीं है तो बच्चे पानी ऊपर कैसे जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ओके, ऑल राइट, चलो। तो बच्चे दिस इज हाउ वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड्स इन प्लांट्स, दिस इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप। चलो, अब बच्चे वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। अब बच्चे दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। This process is known as translocation. अब बच्चे हाउ डू वी डिफाइन ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड, सॉरी नॉट अपवर्ड, इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट, इट इज ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड in plants through phloem, through phloem। ओके, ये ट्रांसपोर्ट है बच्चे फूड का प्लांट्स में थ्रू फ्लोएम। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट, ओके मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, ट्रांसपोर्ट, ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स थ्रू फ्लोएम। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स, बच्चे प्लांट के अंदर पार्ट्स जो हैं, फूड की रिक्वायरमेंट अपर पार्ट्स को भी है, लोअर पार्ट्स को भी है। ऑलराइट, सो व्हेन यू टॉक अबाउट, when you talk about transportation of plants, transportation of food in plants, okay, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, how will we define it? इसमें डायरेक्शन क्या रहेगी, both upwards as well as downwards, this transport is both upwards as well as downwards। ओके, ऊपर की साइड भी नीचे की भी साइड की, तो आप कह सकते हो बाई डायरेक्शनल है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, तो बच्चे यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये हमने न्यूट्रिशन में भी सीखा था, व्हेन फोटोसिंथेसिस अकर्स, जब बच्चे फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज ग्लूकोज, ग्लूकोज। पर बच्चे जब प्लांट को ये फूड को ट्रांसपोर्ट करना है, इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसलोकेशन। किस फॉर्म में होती है, ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज। बच्चे कभी भी ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट नहीं होता, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सुक्रोज। एंड बच्चे व्हेन वंस दिस फूड इज ट्रांसपोर्टेड, और उसको स्टोरेज करनी है, रिजर्व फूड, स्टोरेज, स्टोरेज किस फॉर्म में होगी फूड की, स्टार्च। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद होना चाहिए आपको। जब फोटोसिंथेसिस खत्म होगा तो ग्लूकोज बनता है, प्लांट ने जब इसको स्टोर करना है तो किस फॉर्म में स्टोर करेगा, स्टार्च। ट्रांसलोकेशन किस फॉर्म की होती है, सुक्रोज, इसमें इंटर कन्वर्जन है। So when you talk about translocation, glucose will be converted into sucrose. अब बच्चे what do you mean by sucrose? बच्चे sucrose is common sugar जो हम घर पे खाते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है, what is its formula? It is C12H22O11. This is common sugar जो घर पे हम खा रहे हैं। ग्लूकोज क्या है, this is C6H12O6। तो बच्चे ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर,
मोनोसैकेराइड भी कह देते हैं इसको, सिंपल शुगर है। सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड। सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड है। बच्चे आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ग्लूकोज को क्यों नहीं ट्रांसपोर्ट कर लेता प्लांट। बच्चे ग्लूकोज जो होता है ना वो बहुत रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज इज अ रिएक्टिव मॉलिक्यूल, ऑलराइट, देयरफॉर इट इज कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज। अब बच्चे देवादत्तन, वी कैनॉट इन क्लास 10th वी कैनॉट बी टॉकिंग अबाउट हाउ इट इज कन्वर्टेड। इसमें बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं which has many steps and enzymes, all right. तो at your level we can simply learn कि glucose is converted into sucrose। याद ये रखना है कि इसमें steps होते हैं। this is something which comes under biochemistry, something that you will be learning in higher classes, ठीक है। हाँ जी आकृति। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर सर जैसे जो प्लांट में जो फूड बनता है सर वो शुगर के फॉर्म में होता है, तो सर जो अदर फ्रूट्स होते हैं जैसे ऑरेंजेस और वेजिटेबल सर उनमें किस तरह का सर ट्रांसपोर्टेशन होता है? सर वो तो थोड़े खट्टे से होते हैं सर, फिर उसके लिए। देखो बच्चे आकृति, आपको याद ये रखना है कि प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस हो रही है ना, तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है फूड की, वो तो सुक्रोज की फॉर्म में है। पर बच्चे जो उनके अंदर वो आप कह रहे हो जो उनका सॉर टेस्ट है, वो किसकी वजह से? इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड, राइट। तो बच्चे प्लांट के अंदर बहुत सारे और प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं जिसमें ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, राइट। यस सर। ओके, जैसे अगर आप एप्पल खाओगे, एप्पल का टेस्ट भी थोड़ा सा खट्टा होता है, फिर भी यस सर। ऑरेंज के जितना खट्टा तो नहीं है, फिर भी थोड़ा सा उसमें टैंगी टेस्ट होता है, दैट इज ड्यू टू मैलिक एसिड। पर बच्चे अगर आप उसमें शुगर कंटेंट देखोगे तो वो किस फॉर्म में आपको शुगर कंटेंट मिलेगा? इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। ओके। ट्रांसपोर्टेशन के लिए सुक्रोज है, स्टोरेज के लिए किस फॉर्म में मिलेगा? स्टार्च। और स्टार्ची फूड्स जो हैं अलग होते हैं, जैसे अगर आप राइस देखोगे, पोटैटो देखोगे, उनमें स्टार्च की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि बच्चे वो स्टोरेज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो बच्चे आपको प्लांट्स में अलग अलग टाइप की शुगर्स मिल सकते हैं, अलग अलग टाइप के केमिकल्स मिल सकते हैं, पर याद ये रखना है कि जब ट्रांसपोर्टेशन होगी तो प्लांट फूड की ट्रांसपोर्टेशन किस फॉर्म में करता है? सुक्रोज, ठीक है। यस सर। सर फिर जो सिट्रस होता है सर वो प्लांट में कैसे फॉर्म होता है? बच्चे मैंने अभी आई थिंक इसका आंसर देवादत्तन को भी दिया था। देवादत्तन पूछ रही थी कि ग्लूकोज सुक्रोज में कैसे कन्वर्ट होता है। अब बच्चे देखो, इसमें बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं विच इज समथिंग विच कैन नॉट बी डिस्कस्ड एट योर लेवल। इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, एंड दैट बिकम्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ डिटेल। क्लियर आकृति? तो वो हम आपके लेवल पे डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वो डिटेल बहुत ज्यादा है। आई थिंक ये मैंने आपको रेस्पिरेशन में इस बार तो नहीं बताया, पिछली बार बताया होगा। आई थिंक आप में से लास्ट टाइम एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो ग्लूकोज पायरुवेट में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। बच्चे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 10 रिएक्शन होते हैं, 10 रिएक्शंस, तब जाके ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। और हम उसको कैसे लिखते हैं कि ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया? दैट इज अकॉर्डिंग टू योर क्लास। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें हम वो डिस्कस ही नहीं कर सकते। हमने देखो आपके लेवल पे फोटोलाइसिस कितने आसान तरीके से डिस्कस की है कि सन की एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, वाटर टूट गया, पर ऐसे नहीं होता बच्चे, इसमें बहुत सारे रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू योर क्लास। तो हम आपके क्लास के रेलिवेंट जो आपको आएगा वो डिस्कशन कर रहे हैं। वी कैन नॉट बी डिस्कसिंग थिंग्स जो आपके क्लास के रेलिवेंट ही नहीं है, क्योंकि उनकी डिटेल ही बहुत ज्यादा है, राइट आकृति? इज दैट क्लियर? ओके, see Madhav, part of photosynthesis and respiration in detail you will be dealing in class 11th। पर बच्चे क्लास 11th में भी इतनी अच्छी डिटेल नहीं होती, ठीक ठाक डिटेल होती है। यस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट तो वो डिटेल थोड़ी बढ़ जाएगी, बट वंस यू गो टू ग्रेजुएशन, अगर आप कॉलेज में जाओ, बीएससी में आप बायोलॉजी लो, बॉटनी ले लो, जोलॉजी ले लो, या बायोकेमिस्ट्री लो हायर क्लासेस में, तब जाके उतनी डिटेल पढ़ते हो आप। मतलब आप ये मानो कि कॉलेज लेवल पे जाके इतनी डिटेल होगी। इज दैट क्लियर आकृति?
ओके तो बच्चे देर आर सर्टन थिंग्स, आप ये मत सोचिए कि टीचर आपको बताना नहीं चाहता, पर कुछ चीजें ऐसी हैं बच्चे, अगर हम उनको पढ़ाने लग जाएंगे तो हमारा जो सिलेबस है वो कभी कवर ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है. Alright, the things which are relevant to our class we can pick that up. Things which are not relevant to our syllabus वो नहीं हम पिक कर सकते. It will take a very long time. और वो हम अभी याद करके कैसे, उसको इम्बाइब करने में ही बहुत टाइम लगेगा आप लोगों को, इसलिए नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा. ठीक है, चलो अब अच्छा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस ट्रांसपोर्टेशन अकर्स. ट्रांसलोकेशन विल अकर इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज. अब बच्चे हमने ट्रांसपिरेशन में लिखा था इट इज अ पैसिव प्रोसेस, लिखा था, कहाँ लिखा है, आई थिंक डायग्राम में लिखा था. ओके, इट इज अ पैसिव प्रोसेस. व्हाट अबाउट ट्रांसलोकेशन? बच्चे ट्रांसलोकेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस. इट इज अ एक्टिव प्रोसेस. ट्रांसलोकेशन इज एक्टिव process. अब बच्चे why we are saying it is a active process? Reason, क्योंकि बच्चे जब ट्रांसलोकेशन होगी chemical energy is spent. When translocation occurs, what is going to happen? Chemical energy is spent in the form of ATP. Okay, ट्रांसलोकेशन के टाइम क्या होगा? केमिकल एनर्जी स्पेंड होगी. ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन during translocation chemical energy is spent. In the form of ATP. अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि जब ट्रांसपिरेशन हो रही थी तब भी तो फोर्स चाहिए, पानी को ऊपर खींचना है ग्रेविटी के अगेंस्ट. अब यहां तो फूड ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, इसके लिए मुझे केमिकल एनर्जी क्यों स्पेंड करनी है? ओके, व्हाई डू वी नीड टू स्पेंड एनर्जी इन दिस प्रोसेस? तो बच्चे इसका आंसर जो है हमें इस डायग्राम से मिलेगा. ओके, हियर इट इज. ये बच्चे जब हमने फर्स्ट टाइम भी किया था तब भी मैंने आपको ये डायग्राम शो किया था. बच्चे दिस ए डायग्राम ये क्या शो कर रहा है? दिस इज शोइंग स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लोएम. ये फ्लोएम का स्ट्रक्चर शो कर रहा है. अब बच्चे फ्लोएम के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स. ओके, सीव ट्यूब्स के अंदर बच्चे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सीव प्लेट्स होती हैं. व्हाट आर सीव प्लेट्स? दे आर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स विद होल्स इन देम व्हिच रिजेंबल अ सीव. इस सीव प्लेट के थ्रू ही बच्चे मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है. अब बच्चे वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दिस प्रोसेस इज अकरिंग. ओके, ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस कैसे होता है बच्चे? जाइलम एंड फ्लोएम, प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम जो है दे आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. जाइलम के अंदर वाटर है, फ्लोएम के अंदर क्या होता है? फूड की ट्रांसपोर्टेशन है. अब बच्चे जाइलम के अंदर जो ये सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब के साथ एसोसिएटेड एक कंपेनियन सेल होता है. आई होप आपने ये क्लास 9th में पढ़ा होगा. सीव ट्यूब इट हैज अ क्लोजली एसोसिएटेड कंपेनियन सेल. अब बच्चे कंपेनियन सेल क्या करता है? ये सीव ट्यूब के सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है और उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसलोकेशन. ये ट्रांसलोकेशन में कैसे हेल्प करेगा बच्चे? लेट्स से दिस इज आवर सोर्स सेल वेयर फूड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. फूड यहां प्रोड्यूस हो रहा है. तो बच्चे व्हाट इज कंपेनियन सेल डूइंग? कंपेनियन सेल क्या करेगा? ये कंटिन्यूसली यहां से फूड को उठा के अपने साथ जो सीव ट्यूब है उसमें इसको ट्रांसपोर्ट करेगा. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लोडिंग. बच्चे व्हेन यू डिड ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन उसमें आपने सीखा होगा मटेरियल्स आर ऑलवेज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. अगर आपके पास बच्चे किसी भी मटेरियल की हायर कंसेंट्रेशन है तो वो बिना एनर्जी के लोअर कंसेंट्रेशन की साइड ट्रेवल कर जाता है. पर बच्चे अगर आप लगातार एक ही जगह पे कंसेंट्रेशन बढ़ाओ, अगेंस्ट दी कंसेंट्रेशन जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू स्पेंड एनर्जी. आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी को स्पेंड करना पड़ेगा. यू विल हैव टू स्पेंड एनर्जी. ऑलराइट,
बिकॉज आप एक जगह पे क्या कर रहे हो, एट वन प्लेस यू आर इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन. फॉर दिस यू विल हैव टू स्पेंड एनर्जी. इसको आप कैसे कोरिलेट कर सकते हो बच्चे, हमारे घर में जो ऊपर टैंक होता है, वाटर टैंक, उसमें पानी कैसे ऊपर जाता है, हमें मोटर चलानी पड़ती है. द मोटर विल स्पेंड एनर्जी टू पंप दी वाटर अप. वाटर जब पानी इकट्ठा हो जाएगा पंप में, देन व्हाट वी डू, अगर मैं नीचे टैप खोलता हूं क्या होता है, पानी अपने आप नीचे आ जाता है, क्योंकि टैंक में हमने वाटर की कंसेंट्रेशन को बढ़ा दी है. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन लोडिंग ऑल्सो. The companion cell, it will constantly load sugars, sucrose in the adjoining sieve tube. अब बच्चे जब यहां शुगर की कंसेंट्रेशन बढ़ गई, adjoining sieve tube में जब शुगर की कंसेंट्रेशन बढ़ गई, तो what is going to happen, जाइलम में से वाटर निकल के इस सीव ट्यूब में आएगा ड्यू टू ऑस्मोसिस. अब मैं बच्चे आपको ऑस्मोसिस एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ऑस्मोसिस तो आई होप आपको पता होगा. जिस सीव ट्यूब में शुगर की कंटेंट बढ़ गई है, वहां पानी अपने आप अंदर आएगा थ्रू जाइलम. दैट इज ड्यू टू प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. अब बच्चे इस सेल के अंदर, इस सीव ट्यूब के अंदर ऑस्मोसिस की वजह से क्या होगा, पानी इकट्ठा होगा, यहां हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा. वाटर की वजह से यहां हाई प्रेशर होगा. फिर बच्चे क्या होगा, ड्यू टू दिस हाई प्रेशर वाटर विल बी ट्रांसपोर्टेड टू एरियाज वेयर देयर इज लो प्रेशर. पानी उधर ही ट्रेवल करेगा ना जहां लो प्रेशर है. एंड अलोंग विद वाटर फूड इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड. और बच्चे ये एरियाज कौन से होंगे, सिंक सेल. सिंक का क्या मतलब है, जहां फूड की रिक्वायरमेंट है, जहां फूड की रिक्वायरमेंट है. तो बच्चे दिस इज हाउ फूड इज ट्रांसपोर्टेड. ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीबडी, सबको ये प्रोसेस समझ आ गया. I will be sharing this diagram also with you once again. ये पहले भी मैंने नोट्स में शेयर किया था, पर आज भी मैं ये डायग्राम आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप इसको देख के समझ सकें. एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ थ्योरी दी हुई है, उसमें कोई डायग्राम नहीं है. ऑलराइट, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस प्रोसेस अकर्स. ओके, कंपेनियन सेल constantly loads sucrose into the adjoining sieve tube. इंक्रीजिंग की जगह बच्चे आप लिख लो अगेंस्ट दी, वो ज्यादा अच्छा होगा. अगेंस्ट दी कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. अगेंस्ट दी कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बच्चे क्या हो रहा है, सुक्रोज जो है वो लगातार सीव ट्यूब में क्या हो रहा है, लोड हो रहा है. अगेंस्ट का क्या मतलब है, वी आर इंक्रीजिंग दी कंसेंट्रेशन एट वन प्लेस. ऑलराइट, देखो देवादत्तन, सेम वही तरीका है. अगर फूड नीचे रूट्स में स्टोर हो गया तो वहां उसकी कंसेंट्रेशन बढ़ी हुई है. ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ नीड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ऊपर शुगर की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी, रूट्स जहां फूड स्टोर है वहां क्या होगा, खाना ज्यादा है. तो कंपेनियन सेल क्या करेगा बच्चे, वही सेम चीज, सोर्स सेल से फूड को उठा के सीव ट्यूब में लोड करेगा. सोर्स सेल से फूड को उठाएगा, जहां फूड स्टोर है वहां से उठा के सीव ट्यूब में लाएगा. लोडिंग सेम वही चीज जो पहले हुई थी. वाटर विल मूव फ्रॉम जाइलम इनटू दी सीव ट्यूब, वहां प्रेशर क्रिएट होगा एंड दिस विल पुश दी फूड अपवर्ड्स. देवादत्तन, इज इट क्लियर? बच्चे देखो, प्लांट के अंदर फूड कहाँ यूज होता है, जहां उसको जरूरत है और जहां उसको स्टोर करना है. जो स्टोरेज साइट होती है बच्चे, वो सोर्स भी बनता है, तभी तो ऊपर की साइट ट्रांसपोर्ट हो पाएगी. सोर्स एंड सिंक ये दोनों चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन प्लांट. ऑलराइट, जब प्लांट के लीफ गिर जाएंगे, व्हेन लीफ विल फॉल, जब प्लांट के बच्चे लीफ गिर जाएंगे तो क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन,
उस टाइम लीफ में खाना नहीं बन रहा, प्लांट्स में खाना नहीं है, तो क्या होगा, रूट्स में से क्या होगा, रूट्स विल पुश द फूड, रूट्स में जहां फूड स्टोर है वहां प्रेशर की वजह से फूड ऊपर जाएगा, सेम प्रोसेस यही चलेगा. ओके, देन व्हाट हैपेंस, एज अ रिजल्ट, water moves in to the, water moves into the sieve tube by osmosis. ऑस्मोसिस की वजह से क्या होगा बच्चे, क्रिएटिंग हाई प्रेशर. तो बच्चे उस जॉइनिंग सीव ट्यूब के अंदर हाई प्रेशर क्रिएट होगा. एज अ रिजल्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इसकी वजह से क्या होगा, this will push the food, this pushes food along with water to places where pressure is low. अब बच्चे प्रेशर कहाँ कम होगा, जहां फूड की रिक्वायरमेंट है, where food is required. All right, तो बच्चे this is how food transportation occurs in plants. Is this clear everybody? सबको समझ आ गया ये क्वेश्चन, सॉरी ये पोर्शन सबको समझ आ गया? ऑल राइट, ओके. तो बच्चे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जो है वो खत्म हो गया है, वी आर थ्रू. ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस इन प्लांट्स इज ऑल्सो डन. ओके, ट्रांसलोकेशन इज डन. ओके, ऑल राइट. तो बच्चे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एक्सक्रीशन. बच्चे एक्सक्रीशन विल बी पिकिंग अप इन आवर नेक्स्ट सेशन. एक्सक्रीशन जो है बच्चे हम अपने नेक्स्ट सेशन में पिकअप करेंगे. ऑल राइट, I'll just come back to Devadattan's question. Just a moment. Let me just open this. Right. Okay.